Soon after their television interview together, Qandeel and Mufti Kavi arranged to meet in a hotel room in Karachi. So guys, आप लोगों को पता है कि मैंने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने मुझे बहुत बुलाया। I mean, जब चांद देखने के लिए आए थे तो उन्होंने मुझे Qandeel films herself teasing the Mufti. He is too good. Oh my God, I can't believe कि ये कितने अच्छे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे यहाँ तशरीफ लाई। These images of Qandeel and the cleric were soon broadcast on every news channel. When I saw those images, you know, he's sitting there smiling. I said, well done, Qandeel. You know, you've shown his true face. Qandeel then goes on national television to claim that the Mufti had gone further than offering spiritual advice. बिल्कुल ऑफर की, मैंने आपको बोला है, he tried a lot and he said कि 17 निकाह किए और 18वां निकाह मैं आपसे करने के लिए तैयार हूँ और उसके बदले में आपको जो कुछ चाहिए होगा मैं आपको दूंगा और वो। The embarrassed cleric insists he has done nothing wrong. न मैंने इनके लिए अपने हवाले से निकाह की बात की है, न मैंने अपने हवाले से शादी की बात की है। इन्होंने अपने खानदान के हवाले से बताया कि मैं फुलां कॉलोनी में रहती हूँ और मेरे वालिद साहब की ये कैफियत है। फिर उन्होंने कितने झूठ बोलेंगे मुफ्ती साहब, आप बस कर दो। Humiliated on national television, Mufti Kavi was then dismissed from a prestigious religious committee. उसको मतलब रोती हिलाल कमेटी से निकाल दिया है कि मुझे एक तरफ से दुख भी हो रहा है, एक तरफ से मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है कि अच्छा होगा उसके साथ। Following the controversial Kavi incident, the national media publish an image of Qandeel's passport, revealing her real name, Fawzia Azim. Naming her meant shaming her, making her and her family targets. Women are progressing in this country. Women have aspirations and women have advanced. They are far more liberal than society wants them to be. And so they are under threat all the time. And it is mostly young men, it's the brothers. Obviously are chastised by their peers that what is your sister doing? Qandeel's younger brother, Wasim, begins to receive insults from the local community about his scandalous sister. हाँ गाँव वाले बाहरों बंजन आता वसीम को आखे ना मेरी तुसन दल्ले ही वे तुसन बेगैरती वे शोशाई पा दिता गाँव तई थाई पीछे निंदा इंटरव्यू था ना रमज़ान शरीफ है कंदील ते मुफ्ती कवी दा उठाओ बेली ना था आपते झगड़ा। I swear मुझे इतने ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे कि मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से सुकून चला गया है, मुझे मेरी रातों की नींद उड़ गई है। आपको किसने कहा था मुफ्ती के कमरे में जाएं, उसकी कैप पहने, उसके साथ वीडियो बनाएं? वो मुझे जो बेहतर लगा मैंने कर दिया, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अब डिफरेंट तरह से थ्रेट्स आ रहे हैं। मुझे कभी अफगानिस्तान से कॉल आ रही है, मुझे कभी मेल्स आ रही है, मुझे व्हाट्सएप कॉल आ रही है, मेरा क्या कसूर है? In genuine fear for her life, Qandeel runs to the one place she thinks she will be safe, back home to her mother. परेशान है डेली कपड़े अपने में सीधे साधे ना तना पहनी सीधे साधे इनमें सीधे साधे बलोच के कपड़े पाकने चादर लपेट कने मुंह वलहेट कने आइए जिਵੇਂ डर कने खौफ। Splashed on the front pages of newspapers and forced to defend her behavior on national TV, Qandeel Baloch sought the safety and security of her family home. Little did she know, this is where she was at most risk. On the night of the 15th of July 2016, Qandeel, Wasim and their parents sit down for an evening meal. Now alone, Wasim pours 4 glasses of milk for himself, his parents, and Qandeel. He then puts a sedative into 3 of the glasses. दूध पिया बस ये फौरन तले लथा गया पीछे से अगले जान टूट गई इन्हें सब कोई पता नहीं। At 11:30 p.m., Wasim enters Qandeel's bedroom.
and strangles her in her sleep. The next morning, Qandil's mother wakes up feeling groggy. मेरी माँ भी बाय बाय के मेरे जिस्म में साह के शकना अखी न गो नीला बेली में पानी मुंह धो धो के मैं सोचे दो पे ये था कंदील उठी नाचता कंदील उठी नाचता ये कुछ ये कंदील ला बंदा नहीं आया ये गई है कपड़ा पाटी थी सफाई और पसीना वाला पाटी पे चिट्टा ये कसाफा मुंह तो लाए ये तो उठे झट्टी है पिटन हाल हाल इनको मैं आवाज दी थी बेली कंदील काहे नहीं कंदील खत्म थईला थी Less than 24 hours after Qandil's murder, Wasim is arrested. He readily confesses to killing his sister on live TV. गल्ला दबा दिया गल्ला पहले कोई चीज नशावर दी थी हाँ दी थी टैबलेट दी थी Attiya Jafri is one of the few people who has spoken to Wasim since he was arrested. और मुझे देख के उसे यकीन हो गया था कि इसने किया होगा क्योंकि जिस इलाके का वो रहने वाला है वहाँ पे तो छोटी छोटी बातों पे मतलब लड़की लड़के से बात कर ले तो लोग कत्ल कर देते हैं तो कंदील का तो ऑनर किलिंग आपको पता है इस साइड पे सबसे ज़्यादा है तो उसने कहा जी मैं तो तंग आ गया था बड़ा समझाया था कि ये काम छोड़ दो नहीं छोड़ा तो फिर मेरे पास और कोई हल नहीं. Towards the end of his interrogation, Wasim seemed to show some remorse. उसे कहती थी कि तुम्हारा कैसे दिल किया होगा तुम्हारी उम्र में 2-4 साल का फर्क था तुम्हारा तुम एक जैसे बहन भाई थे घर में खेले मतलब सारी उम्र इकट्ठे रहे तो तुम्हारा दिल भी ऐसे कांपा उसका गला दबाते हुए तो उसके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का. मुझे बड़ी ही तकलीफ महसूस होती थी बहुत. जब वो जाने लगा जुडिशल हम लोगों ने उसके 14 दिन रिमांड पूरा कर लिया उस दिन मैंने उससे कहा उसने कहा तुझे अफसोस नहीं है क्या meant the police were forced to investigate. During his confession, Qandil's brother Wasim seemed to suggest that the selfies with the cleric Mufti Kavi motivated him to kill. बहुत सारे मसले बने हुए हैं ना कौन से वो जो मौलवी का मसला बना हुआ है हमारे घर मीडिया आई है पहले तो ये मसला नहीं बना था ना इसलिए मसला बना कि हमने ये काम कर दिया. But Qandil's parents believe Mufti Kavi was embarrassed and angered by Qandil's teasing video. तस्वीरां बार तस्वीरां आईयां तू मुल्तान जड़न और से मेडो था मुरीद बहु है तू ना बच से ओ जले इन इंटरव्यू थिया ना था मैं को दसेंदी पी आधी पी अम्मी मैदाई में था झगड़ा मुफ्ती कवि नाल बेटी हलाल कमेटी 2004 A few months after Qandil's death, her parents show us where she was murdered. ए था के वालमाई में कंदील दा कपड़ा हटाए में कंदील तो काहे ना कंदील दा मुंह सुजा पिया कंदील दी जबान निकथी पी कंदील दा थशर नशर थिया पिया मैं उठाओ कने पीछे रड़न पाई गया पीटन पाई गया नाल वाली हम सही जरा सामने वाला गेट है वो आ गई मेडो और आदि अम्मा जी क्या थी गया मैं दिया कंदील काहे नहीं कंदील कोई मार गया. एक तो मेरी बेटी दोस्त रही हर कने पहले बड़ी दोस्त नहीं बल वो जिगर बेटी भी है बेटा भी वो नुकसान होती बेटी तो नुकसान ई के वध के मेरा करा जरी शहनशाह बेटी मरी मैं को मर्जी तम तक उठाना ना ली बिलावा ना ली जंग मेरी हूँ पानी है मेरी ज़िंदगी तो ऊँ करनी है मौत तो खुदा देनी मेरी दुख सुख की जामिन हुआ ही बहुत ज़्यादा इसी खुशी में. Often the parents of honor victims forgive the killer in return for a compensation payment. But Qandil's father is adamant that he wants justice for Qandil, even though it will mean the loss of another child. बिल्कुल क्यों ना हो वो फांसी नहीं चली उसको ये फांसी नहीं है बाबू ये देखा गला दबा मारे घुट्टी पे फांसी नहीं ये क्या है जा आके जी मैं बैठ रहा गया सामने जो टकुका है कि मैं गनी ही आई ये जो धोखा की थी क्यों की थी ये जो धोखा की थी क्यों की थी पर लादा ये बैठे ऐसा उठे हैं तू जान तेरा कम जाने रोंदा पिटे तो मैं कहना ना ये गल गलत है
जिमें खुदा जी तरफों थी उमें थी ये तो सा गुड़ा नुकसान की थे सज़ा पे